Hello children, once again I welcome all of you to my YouTube channel. Today in this video we'll be discussing about chapter number 6 of the book First Flight, class 10 CBSE, that is the 100 Dresses part 2. So chapter number 5 was part 1, the 100 Dresses part 1, and today we'll be discussing about part 2. So before we go into the explanation part of this chapter, let's revise what we studied in part 1. So my dear children, in part 1 we saw that there were 3 children, Wanda Petronsky, Peggy and Maddie. Wanda Petronsky was a Polish girl, whereas Peggy and Maddie were best friends. Wanda Petronsky was a poor girl. She was not from a rich family, and most of the time the other girls of the school, including Peggy and Maddie, would make fun of Wanda Petronsky. And the reason behind making fun of Wanda was because of her funny name. And this was not only the reason, the another reason was that Wanda Petronsky, she had only one dress, and that was a faded blue dress. But whenever she was asked by the other girls, especially by Peggy, about her dresses, she would say that I had 100 dresses. And that was the main reason that other children would laugh at her. But somewhere Maddie, the close friend of Peggy, was not happy with this kind of treatment that was given to Wanda. And the reason was Maddie herself was a poor girl. But somewhere she had this notion in her mind that if Wanda was not the target, then who would be the next target? And according to her, she would be the next target. Then in the story, we saw that a drawing competition was held, where for girls they were supposed to draw designs of beautiful and various dresses, whereas the boys were supposed to draw a motorboat. And finally, when the results were declared, everybody was astonished to find that Wanda had won the drawing competition. She drew some 100 beautiful drawings of different beautiful dresses, and all the drawings were capable of being the champion. So this is what we studied in the first part, whereas everybody was expecting Peggy to win that competition, but at last Wanda won the competition. We also saw in the first part that Wanda was absent. She was not coming to school. She was regularly absent since Monday. And now let's see what happens in part number 2. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Attention class, everyone back to their seat. Now what is happening? The monitor, he comes from the principal's office and he brings a note to Miss Mason. And after studying that note thoughtfully, finally Miss Mason
She clapped her hand and told everybody in the class to be attentive, and everybody went back to their seats. हमने क्या देखा अभी कि इस चैप्टर की शुरुआत में जो मॉनिटर है वो प्रिंसिपल ऑफिस से मॉनिटर आता है और उसके हाथ में एक छोटी सी पर्ची होती है और वो पर्ची मिस मेसन को देता है और मिस मेसन उसको कई बार बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद पूरे क्लास से कहती है कि अटेंशन हो जाओ, कुछ स्पेशल बात है जो मुझे आप लोग को बताना है. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. और उसके बाद सारे बच्चे जो इधर उधर थे वो जल्दी जल्दी जाकर अपने अपनी जगहों पर बैठ गए और जो जूतों की आवाज़ें हो रही थी बच्चों की वो भी शांत हो गई. उसके बाद मिस मेसन ने बोला कि मेरे पास वांडा पेट्रोंस्की के फादर की तरफ से एक लेटर आया है और मैं उस लेटर को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ. मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. अब क्या हुआ कि मिस मेसन वो कुछ समय के लिए शांत हो गई क्लासरूम में और पूरे क्लास में एक अजीब सा माहौल बन गया. सब बहुत इंटरेस्टेड थे जानने के लिए कि उस लेटर में क्या है और सब बहुत वरीड भी थे कि ऐसा क्या लिखा है उस लेटर में और सब बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मिस मेसन उस लेटर को पढ़े. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, दिस लेटर फ्रॉम वांडा's father, was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. उसके बाद क्या हुआ कि जिस प्रकार से टीचर अपने चश्मे को पहन रही थी, जिस प्रकार वो अपने आप को तैयार कर रही थी उस लेटर को पढ़ने से पहले, ये साफ समझ में आ रहा था कि दैट लेटर वॉज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, कि उस लेटर में बहुत ही ज़रूरी बात लिखी हुई है. इसलिए सारे बच्चे बहुत अटेंटिव होकर वेट कर रहे थे कि उस लेटर में क्या लिखा है उसको सुना जाए. डियर टीचर, my Wanda will not come to your school anymore. Jake also. Now we move away to big city. No more holler, Polak. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petronsky. Now in this letter it is written by Wanda's father कि अब मेरी बेटी जो वांडा है वो स्कूल अब नहीं आएगी. Jake also. Jake माइट बी ब्रदर ऑफ वांडा, हो सकता वांडा का भाई हो. और वो कहते हैं कि वी आर मूविंग टू ए बिग सिटी, हम एक बड़े शहर में जा रहे हैं. नो मोर हॉलर पोलैक. हॉलर मीन्स लाउड शाउट. पोलैक मीन्स एन इंसल्ट फॉर पॉलिश पीपल. ठीक है, बेसिकली जो पोलैक है ये एक प्रकार का गाली है जो कि स्पेशली किनको दिया जाता है, पॉलिश लोगों को, जो पोलैंड के लोग हैं. जैसे कि जो ब्लैक पीपल होते हैं उनको नीग्रो अगर कहा जाए, ठीक है, तो वो एक प्रकार का इंसल्ट होता है उन लोगों के लिए, एक प्रकार गाली के बराबर होती है उनके लिए. उसी तरह पोलैंड के जो लोग होते हैं, पॉलिश लोग, अगर उनको पोलैक बोला जाए, दैट इज़ ए काइंड ऑफ इंसल्ट, दैट इज़ ए काइंड ऑफ अब्यूज़ फॉर देम. तो कहते हैं कि अब हम एक बड़े शहर में जा रहे हैं, वहाँ पर कोई हमको उल्टा सीधा नहीं कहेगा, कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा, ना ही हमारे नाम का कोई मजाक उड़ाएगा, क्योंकि ऐसे बड़े शहरों में ऐसे फनी नेम्स बहुत लोगों के होते हैं. ये कोई बड़ी बात नहीं है. A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. लेटर को पढ़ने के बाद मिस मेसन अपने चश्मे उतारे और चश्मा उतारने के बाद उन्होंने उसको पोंछा फिर से, और पोंछने के बाद अपने हैंडकरचिफ, अपने रुमाल से उसको पोंछा और दोबारा पहना. और इस बार बड़ी धीमी आवाज़ में उन्होंने कहा, क्लास में एकदम सन्नाटा है. I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long, unfamiliar one.
उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस रूम नंबर 13 में जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो जानबूझकर, पर्पसफुली एंड डिलिबरेटली मीन्स जानबूझकर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया होगा, कभी किसी के नाम का, किसी व्यक्तित्व का उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया होगा. आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. शी इज सेइंग, आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस. एंड शी इज सेइंग दैट मैं ये मानती हूं कि वांडा पेट्रोंस्की के फादर ने जो लेटर में ये बात कही है वो उन्होंने ऐसे ही बिना ध्यान दिए, बिना सोचे ही इस बात को लिख दिया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि रूम नंबर 13 के अंदर जितने भी बच्चे हैं सब बहुत अच्छे हैं और किसी का मजाक नहीं उड़ाते. आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग हैव हैपेंड. और वो कहती हैं कि मुझे पता है कि मुझे जिस तरह दुख हो रहा है आप लोग को भी दुख हो रहा है और ये बहुत ही गलत हुआ है जो हुआ है. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट. और इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचिए. द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड. और जो पहला पीरियड था दैट वॉज अ स्टडी पीरियड. every student was studying, the teacher was teaching. Maddie tried to prepare her lessons but she could not put her mind on her work. But Maddie, somewhere she was trying to prepare her lessons. वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी but her mind was somewhere else. लेकिन उसका दिमाग कहीं और लगा था, वो पढ़ नहीं पा रही थी. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. But she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. Now what is happening? Maddie is feeling very guilty. Maddie को बहुत बुरा लग रहा है, अपने ऊपर उसको अफसोस हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है. वो सोच रही है कि बिल्कुल जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाया करती थी, ड्रेसेस को लेकर उससे पूछा करती थी, तो मैं चुपचाप खड़ी रहती थी, मैं कुछ नहीं करती थी, मैं पैगी को रोकती नहीं थी. और जितना गुनहगार पैगी है उतना ही गुनहगार मैं भी हूं. जितना गलत काम पैगी ने किया है उतना गलत काम मैंने भी किया है, क्योंकि मैं बगल में खड़े होकर पैगी को कभी मना नहीं किया. शी वॉज ए कावर्ड. कावर्ड मीन्स वॉट? डरपोक. मैडी मनी मन सोच रही है कि आई एम ए कावर्ड, मैं डरपोक हूं. एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. Peggy had not considered they were being mean. Peggy को ये नहीं लगता था कि वो वांडा के साथ गलत कर रहे हैं. But Maddie is saying that yes, वो बिल्कुल गलत कर रहे थे. Maddie को लगता था कि बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं. She could put herself in Wanda's shoes. Okay? Maddie सोच रही है कि मुझे वांडा की जगह पर अपने आप को रख कर देखना चाहिए था. पुट हरसेल्फ इन वांडाज शूज का मतलब होता है वांडा की जगह पर अपने आप को रख कर देखना कैसा महसूस होता है जब कोई मजाक उड़ाए. गुडनेस, was not there anything she could do? If only she could tell Wanda she had not meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. Ab now this Maddie, this girl, she's very, very disturbed. And literally she is thinking कि what have I done? मैंने क्या किया? मैं क्यों नहीं मना की पैगी को? मैं क्यों नहीं वांडा के पास जाके कही कि प्लीज बुरा मत मानो, हमारा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है. And she was very, very, very depressed and worried. उसके बाद मैडी ने घूमकर पैगी की तरफ देखा कि पैगी क्या कर रही है. ओके, स्टोल ए ग्लांस मतलब चुपके से एक झलक देखना. And Peggy was busy in her work. She seemed to be studying hard. वो अपना मन पढ़ाई में लगाई हुई थी. Well, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Now what is happening? Now literally Maddie decided this. Peggy को बुरा लगा हो या ना लगा हो, Peggy को अफसोस हो या ना हो इस बात का, मुझे बुरा लगा है. अब मुझे किसी भी तरीके से वांडा पेट्रोंस्की को खोजना ही पड़ेगा और उससे सॉरी बोलना ही पड़ेगा. देन शी थॉट, हो सकता है अभी वांडा शहर छोड़ के नहीं गई हो. स्टिल शी माइट बी इन दिस सिटी. हो सकता है अभी भी यहीं पर हो. मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड won the contest, that they thought she was smart and 100 dresses were beautiful.
When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." अब literally मैडी इज थिंकिंग, मैडी सोच रही है कि हो सकता है पेगी भी मेरे साथ बोगिन्स हाइट्स, वो जगह जहां पर वांडा रहा करती थी, मेरे साथ वो भी वहां पे आए और हम जाके वांडा को बताएं दैट यू हैव वन द कॉन्टेस्ट, तुम जीत चुकी हो और तुमने जो 100 ड्रेसेस बनाए थे ड्राइंग, दे वर वेरी ब्यूटीफुल एंड यू आर अ वेरी स्मार्ट गर्ल। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, जब दोपहर को स्कूल खत्म हुआ, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." What exactly Maddie was expecting, Peggy said it. जो मैडी उम्मीद कर रही थी, मैडी जो चाह रही थी वांडा के पास जाना, पैगी ने अपने मुंह से वो बात कह दी। बट प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, प्रिटेंडेड कैजुअलनेस मीन्स दिखावा करना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वांडा का। बट एक्चुअली पैगी ऑल्सो फेल्ट दैट पेन। पैगी को भी अंदर से थोड़ा बुरा जरूर लगा था, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती थी मैडी को कि मुझे दुख है वांडा के लिए। तो इसलिए शी सेड इन ए प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, लापरवाही दिखाते हुए शी सेड, हे चलो पता करते हैं वांडा अभी शहर में है कि नहीं, अभी भी शहर में है या चली गई। सो पैगी हैड द सेम आइडिया। वांडा, मैडी ग्लोड। अब इस बात को सुनने के बाद मैडी बिकेम वेरी हैप्पी। ग्लोड मीन्स व्हाट? चेहरा खिल जाना। मैडी का चेहरा खिल गया कि मैं जो सोच रही थी, द सेम थिंग व्हाट पैगी इज ऑल्सो थिंकिंग। पैग वॉज रियली ऑल राइट। अब बिल्कुल पैग की बात बिल्कुल सही है। पैग मीन्स पैगी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बोगिन्स हाइट्स, द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ इन नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल। अब दोनों लड़कियां जो है अब वो बोगिन्स हाइट की ओर बढ़ने लगी। अब जैसे जैसे वो बोगिन्स हाइट्स उस जगह की तरफ बढ़ रही थी, वहाँ की जो हवा थी दैट वाज वेरी फॉरबिडिंग। फॉरबिडिंग मीन्स व्हाट? अनफ्रेंडली। मीन्स एक जैसा माहौल होना चाहिए वैसा माहौल नहीं था, क्योंकि वो जगह जो था वो बहुत ही अच्छी जगह नहीं थी वो जगह पे। और वहाँ पर नवंबर का समय था, दोपहर का समय, लेकिन कैसा माहौल था? ड्रिजली। ड्रिजली मीन्स व्हाट? हल्की हल्की जो है बारिश हो रही थी। देन डैम्प एंड डिस्मल। डैम्प मीन्स व्हाट? एक प्रकार का सीलन, सीलन की जैसी महक आती है वैसी महक आ रही थी। डिस्मल, डिस्मल मीन्स व्हाट? सैड फीलिंग। ठीक है, वहाँ एक बड़ी अजीब सी माहौल था वहाँ पर जाने के बाद उनको ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी उदासी छाई हुई है यहाँ पे। एक प्रकार का सीलनपन सी महक आ रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सो शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दैट होल एटमॉस्फियर। वेल, एट लीस्ट, सेड पेगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। अब पेगी जो है थोड़ी उदास भरी आवाज में उस मैडी से कही कि वैसे मैंने कभी उसको फॉरेनर नहीं कहा, कभी मैंने उसको विदेशी नहीं कहा, कभी विदेशी कहकर उसका मजाक नहीं उड़ाया, ना ही मैंने कभी उसका नाम का मजाक उड़ाया है। आई नेवर थॉट शी हैड दिस सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। पैगी कहती है मुझको तो ये भी एहसास नहीं था कि हम लोग उसका मजाक उड़ाते थे तो उसको पता चलता था कि हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो सोचती थी कि उसको पता भी नहीं लगता हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा तो वो लोग क्या करते थे, बड़े ही प्यार से और सीरियसनेस, गंभीरता से वो पूछा करते थे वांडा से तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं, और जब वांडा चली जाती थी थोड़ा आगे तब वो खूब हंसा करते थे, लेकिन वांडा के सामने ऐसा दिखाते थे जैसे बहुत सीरियस होके पूछ रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम्ब। डम्ब मीन्स वॉट? बहुत ही, यहाँ पे डम्ब का मतलब है बहुत ही सीधी, बहुत ही बेवकूफ़ टाइप की बच्ची है। ठीक है, पेगी सेइंग मुझे लगता तो बहुत ही सीधी है, बहुत ही बेवकूफ़ टाइप की, ये सारी चीज़ें नहीं समझती। एंड गी, लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। गी मतलब व्हाट? शोइंग सरप्राइज। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं अरे क्या बात है, सम व्हाट लाइक दैट। बट नाउ पेगी सेइंग लेकिन देखो, आई थॉट शी वॉज अ डम गर्ल बट शी ड्रू सो ब्यूटिफुल ड्राइंग्स, लेकिन उसने कितनी खूबसूरत ड्राइंग्स बनाई है यहाँ पर। मैडी कुड से नथिंग। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, but Maddie did not say anything. She was only expecting that they would get Wanda there, they would find Wanda there. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was
and please not to move away and everybody would be nice. अब मैडी मनी मन सोच रही है कि I would go there when I would meet Wanda, I would tell her that we were very sorry for you and please don't go away, stay in this school, nobody would make fun of you, everybody would be nice, मत जाओ स्कूल छोड़कर, हम सॉरी कहते हैं, अब तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, तुम यहीं पे रहो, सब तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से पेश आएंगे. She and Peggy would fight anybody who was not nice, और जो भी तुम्हारे साथ मजाक उड़ाएगा हम दोनों उसके खिलाफ लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे. ओके, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. अब दोनों जो है जल्दी जल्दी जो है अंधेरा होने के पहले पहले उनको वहां पर पहुंचना था, बोगिन्स हाइट्स. जल्दी जल्दी दोनों बच्चे they were moving ahead. I think that is where the Petronskis live, said Maddie, pointing to a little white house. इतने में दूर से एक छोटा सा सफेद घर दिखता है, जिसको देख के मैडी कहती है शायद वो घर है जहां पे पेट्रोन्स्की रहती थी. Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. Okay? और जो रास्ता था, रास्ते के दोनों तरफ जो है सूखी घास जो है, थोड़ी थोड़ी सूखी घास इधर उधर पड़ी हुई थी. Wisp of old grass means small bunch of grass. ठीक है, थोड़े थोड़े घास, सूखे घास इधर उधर पड़े थे. और दूर से वो सूखे घास कैसे दिख रहे थे? थिन किटेंस, है ना, जैसे बिल्ली के बच्चे होते हैं वैसे दिख रहे थे दूर से जो. ठीक है. द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन. अब जो घर था, घर का जो आगे का यार्ड है, जो आगे का जगह है, जो आगे का आंगन का जगह कह सकते हैं आप, जो भी है वहां, वो कैसा था? वो काफी फैला हुआ इलाका था, लेकिन पुअर कंडीशन में था. शैबी मीन्स व्हाट? पुअर कंडीशन, बट क्लीन. देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शैबी एंड क्लीन. शैबी का मतलब अस्त व्यस्त, क्लीन मतलब नीट एंड क्लीन, हर चीज नीटली. लेकिन शैबी का मतलब क्या होता है? क्लीन हो सकता है लेकिन चीजें अस्त व्यस्त हो सकती हैं. अगर आप एक बहुत पुराना सा कपड़ा बिना प्रेस किए उसको पहनते हैं लेकिन उसको अच्छी तरह धो के पहनते हैं तो दैट इज ए शैबी ड्रेस. ओके, और क्लीन है वो. ठीक है, शैबी इसलिए है क्योंकि प्रेस नहीं है और उसमें जो है सिलवटें पड़ी हुई हैं, इसलिए आप उसको शैबी बोलेंगे. लेकिन चूंकि आप उसको धुले हैं तो वो क्लीन शर्ट है. ठीक है, क्लीन ड्रेस है. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. इसको देख के मैडी को याद आया वांडा का वो ड्रेस, ब्लू फेडेड ड्रेस जो हमेशा पहना करती थी, जो बिना प्रेस किया हुआ होता था. वो साफ सुथरा तो रहता था लेकिन जो है बिना प्रेस का हुआ करता था. There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door. Now nobody was there. वहां पे कोई इंसान के रहने का कोई भी निशान नहीं दिख रहा था. ऐसा लग रहा था कोई इंसान यहाँ पे है ही नहीं. Peggy knocked firmly on the door. उसने दरवाजा खटखटाया, but there was no answer. लेकिन कोई आवाज नहीं आई. She and Maddie went around to backyard and knocked there. पीछे वाले दरवाजे पर गए, वहां पर खटखटाया. Okay, still there was no answer. Nobody answered. There was no doubt about it. The Petronskis were gone. अब इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि फाइनली पेट्रोन्स्कीज जो है, वांडा पेट्रोन्स्की, उनका फैमिली जगह छोड़ के जा चुके हैं. हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स? नाउ द बिग क्वेश्चन वाज, अब वो सॉरी कैसे कहेंगे वांडा से? हमेशा दिल में जो है एक उनके ये मलाल रहेगा, ये दुख रहेगा कि हमने उस बच्ची के साथ गलत किया है और हम सॉरी भी नहीं बोल पाए. They turned slowly and made their way back down the hill. अब वो जो है quietly they were coming back down the hill. Well, anyway, said Peggy, she has gone now, so what can we do? Besides, when I was thinking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. Peggy कहती है जाने दो, अब क्या कर सकते हैं वो लोग, वो तो चली गई यहाँ से. बट पेगी देखिए क्या कहती है. पेगी कहती है मुझे ऐसा लगता है जब मैं उससे उसके ड्रेसेस को लेकर सवाल पूछा करती थी, लगता है तभी उसके दिमाग में अलग अलग खूबसूरत ड्रेसेस के आइडियाज आ गए होंगे, डिजाइन्स उसके दिमाग में आ गए होंगे, और शायद यही वजह है कि वो इतनी अच्छी खूबसूरत ड्राइंग्स बनाकर इस कॉन्टेस्ट को जीत चुकी है. ठीक है,
So that is what she is literally thinking in that way. Okay, so my dear children, we'll stop this explanation part here only, and in the next video we will discuss the rest of the chapter. I hope whatever we have discussed is quite clear to all of you. Still, if you have any confusion, you can ask me in the comment section and I'll be responding to your queries. So that was all from this video. Thank you, take care, and God bless you.